Now I'm proceeding to the second last chapter of our geography, classification of manufacturing industry. हम लोगों ने इससे पहले किया था मिनरल्स, एंड मिनरल्स जो है बच्चे, दैट इज दी व्हाट वी कॉल एज बेस फॉर एनी इंडस्ट्री. हमारे पास रॉ मटेरियल्स जो है वो हमें हमारे मिनरल इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर के लिए एग्रो इंडस्ट्री से मिलते हैं, एंड इन्हीं चीजों को हम लोग जो है लेटर ऑन वी कन्वर्ट इट इनटू सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको एक फिनिश्ड फॉर्म देना, राइट. एंड इसका एक जो मतलब कि व्हाट आर, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं. वन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंस, देन सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर गोस हैंड टू हैंड. थर्ड आपके आते हैं classify the industries on different basis. Then you will be having the industry which are based on the agricultural outputs, agro based industries, and second आपके आएंगे mineral based industries. And then cotton industry is bit important, jute is important from agro. Then in mineral industry we have the difference between mini and integrated steel plants, then how cement is formed, automobile industry and IT. तो ये आपके जो है वन, these will be the one which will be in the concept one. And if you are going through the notes properly, you don't need to open your books. You can 100% take surety, take these notes, learn them, but जैसा लिखा हुआ है, what are the questions, या फिर आपका ऊपर what is the what concept I have given, आप उसको देखकर if you are learning, you will learn it. And it's a long chapter as well as a in-depth chapter. So I'm starting the same thing. The very first thing what we say is what is manufacturing. हम लोगों ने सबसे पहले उसमें in our economics we have read primary sector, secondary sector and tertiary sector. तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन टेरिशरी सेक्टर. वेयर इज हमारा जो ये वाला जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिस इज बेस्ड ऑन द सेकेंडरी सेक्टर. हम सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं. दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स in large quantities after processing the raw materials into more valuable product is called as manufacturing. जैसे आपको पेड़ से क्या मिलता है, आपको आम मिलता है, you get mango, but mango you may be eating it raw, no doubt. If you are having your if your mom is making delicious mango fruit, mango juice or mango shake, that you might be, then in some of the people you might be having the pickles or. लेकिन if you go to the market, the same mango is used in different areas जहां पर आपका जो है mango as a raw material use करके और products भी बनाए जाते हैं which are used on the commercial basis. हम जो बनाते हैं वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, बट व्हेन वी आर प्रोसेसिंग इट इन लार्ज क्वांटिटी इट गोज फॉर द कमर्शियल वन एंड दैट सेक्टर कम्स एज मैन्युफैक्चरिंग. अब आपके पेपर के अंदर डायरेक्टली तो नहीं आता है बट इनडायरेक्टली आता है दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी. ये जो बैरोमीटर वर्ड है ये आपका कई जगहों पे यूज होता है. तो if you remember the second chapter of economics, sectors of economy, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था that in the initial period
agriculture was the only sector prevalent all over the world. लेकिन धीरे धीरे स्लोली विथ टेक्नोलॉजी हम लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कर लिया, एंड उससे क्या हुआ, हमारी ग्रोथ हुई. सिमिलरली manufacturing industry is the one which has helped in the modernization of agriculture. When the people used earlier, मैं पहले की बात कर रही हूँ, they used the primitive tools, they used the hand labor, but today with many sophisticated tools एग्रीकल्चर जो है मॉडर्नाइज हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, पहले थ्रेशिंग मशीन्स नहीं होती थी, बट आज की डेट पर आप अगर देखोगे तो किसानों के पास थ्रेशिंग मशीन्स होती है. देन देर आर अदर एरियाज लाइक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो कि आपके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सॉइल. Manufacturing forms a backbone of our economy. This can be your question. और अगर ये क्वेश्चन है तो आपको उसमें इंपॉर्टेंस लिखना है. It also reduces the heavy dependence of people on agricultural income, क्योंकि जब आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आपको लेबर्स की भी जरूरत होगी, सुपरवाइजर्स की भी जरूरत होगी. यू विल रिक्वायर पीपल एट ऑल द लेवल्स. सो जॉब, एंड देन उससे रिलेट करके यू ऑल्सो नीड द टेरिशरी सेक्टर्स. Industrial development helps in eradication of unemployment and poverty. Then third is, यही manufactured goods को when we are exporting to other countries, we get the revenue. That means जहां हमारे manufacturing sectors ज्यादा होंगे, that would help in enhancing our economy in a better manner. See, 1950s में when India adopted the 5-year plan, तो जो हमारा पहला 5-year plan था, that was on agriculture, because India is basically an agro based country. But जो second था हमारा, that was on the development of our industries. And इस दौरान many industries were set up. Now the government is having so many schemes जहां आप industries को रखना, मतलब कि if you want to do, then you have the options also. रेडियो वगैरह में उसके काफी अच्छे जो है एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी आते रहते. When we say about the contribution of GDP, contribution of revenue to the government, तो प्राइमरी सेक्टर हमारा है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 17% आउट ऑफ द ओवरऑल द रेवेन्यू वी आर गेटिंग. उसमें से मतलब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू जीडीपी इज 27. 10% हमारा माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वगैरह से आता है. तो इस तरीके से हमारा जो शेयर है दैट हैज बीन देयर, बट यस, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा नहीं. नाउ ये जो मैंने डार्क में लिखा हुआ है, दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन. गवर्नमेंट ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए MSME एक्ट लगा रखा है. एंड इफ एनी पर्सन इज सेटिंग अप हिज इंडस्ट्री अंडर MSME एक्ट, तो गवर्नमेंट उनको बहुत सारे स्कीम्स देती है, और उसी में एक है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल. एक मतलब कि दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी. गवर्नमेंट जो है कोशिश करता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए. मतलब पॉलिसीज की जाती हैं, दी जाती हैं, दे ट्राई. नए नए स्कीम्स लाए जाते हैं, उनको सब्सिडीज दी जाती हैं, और इस तरीके से दे ट्राई टू इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देखिए, हमारे पास में जो मशीन्स हैं, दे आर नॉट दैट मच कॉम्पिटिटिव एट ग्लोबल लेवल.
सो वी नीड सम हेल्प. हमारे पास इंडस्ट्रीज तो है, लेकिन उसके लिए लेबर आउटपुट हमारा उतना अच्छा नहीं है. तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट इज, ये वाला क्वेश्चन आपका 3 मार्कर में आता है. मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर गोज हैंड इन हैंड. इट गोज hand in hand means without agriculture you cannot imagine manufacturing. क्योंकि जो आपके दो इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो एंड सेकेंड इज आपका मिनरल, दोनों आपका जो है इट इज समवेयर रिलेटेड टू द लैंड. एंड एग्रीकल्चर से हमें जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं लाइक जूट, शुगर केन, कॉटन, these are one of the most important elements, or you can say products which we are using in the manufacturing. So that is why हमारे लिए agriculture is the base for manufacturing. On the other hand, manufacturing क्या करता है? Manufacturing जो है it helps in modernization of the agriculture. आपके tractors, insecticides, pesticides, all kinds of the things which are made only in the मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपके जो है एग्रीकल्चर को हेल्प करते हैं. सो इन दिस मैनर बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो दे गो हैंड इन हैंड. दोनों में क्वेश्चन आपकी जैसे मर्जी आ सकता है. द नेक्स्ट इज हाउ डू वी क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज. ये आपके 1-1 मार्क का क्वेश्चन है. ऑल दीज विल कम ओनली इन 1-1 मार्क. पहले आप क्लासिफिकेशन, देन वी विल स्टडी द इंडस्ट्रियल लोकेशन. तो वी कैन क्लासिफाई आपके फर्स्ट चैप्टर में था जो आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. इन द सेम मैनर इट कम्स, क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड. तो जो आपके एग्रीकल्चर से आते हैं लाइक आपका कॉटन, सॉइल, वुलन, शीप यानी कि जूट, अगेन सिल्क, सेरिकल्चर, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एग्रो बेस्ड. और जो आपके मिनरल्स एंड मेटल्स इंडस्ट्रीज हैं वो सारे मिनरल बेस्ड है आपके. तो वी आर हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. मतलब एक होता है जो बड़े बड़े आपके प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग है, जो बेस है किसी इंडस्ट्री के, उनको हम बोलते हैं की इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. और दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो हमारे लिए होता है. एक होता है जो इंडस्ट्रीज के लिए जो बनता है सामान, मशीनें. दूसरा होता है जो कंज्यूमर्स के लिए बनता है. All the toothpaste, sugar, whatever we are consuming, everything is consumer. On the basis of capital investment, यानी कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं. वो काफी है वैसे तो, आपके पेपर में 2 ही है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. वैसे तो इट इज स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल. वैसे तो इट इज small scale, medium scale and large scale. But right now in your exam it is only small scale and large scale. Matlab when you are investing till 1 crore rupees, then it is called as small scale. And 1 से लेकर जितना मर्जी आपका हो, that is called as large scale. Now अब आता है one more important one. है on the basis of ownership. This question is a very repeated one in the papers. Ownership means who is the owner of those industries.
इट कैन बी अ पर्सन हु इज, और ये आपके पेपर में अलग अलग तरीके से आता है द सेम क्वेश्चन. It can be in a 3-marker base. Classify the industry on the basis of ownership, or it may be coming in your paper like ONGC public sector, then dash private sector. या फिर आपको कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा और आपको उसके सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है. So this question is a very very common question in the papers. So on the basis of ownership, all those industries which are managed, owned by government is called as public sector industries. This is because ye industries are set up for the welfare of public. Steel Authority of India Limited यानी कि SAIL, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि BHEL, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, these all industries come under the public sector. Those industries which are managed by group or single individual like Reliance India, Patanjali, डाबर इंडिया जो पेपर में आए हुए हैं, टिस्को, these all industries are private. इनकी जो ओनरशिप होती है, this is to the personal people. Then joint sector, मतलब इसको गवर्नमेंट एंड पब्लिक जो मतलब कि सॉरी प्राइवेट जो है मिलकर भी करते हैं. देयर आर सम एरियाज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोऑपरेटिव. आपका मदर डेयरी, सफल, अमूल. देन देयर आर मेनी शुगर इंडस्ट्रीज जिनको कोऑपरेटिव सेक्टर्स के थ्रू जो है मैनेज किया जाता है. So these are on the basis of the ownership. Next is on the basis of bulk or raw material and finished goods. जैसे heavy industries, capital based iron and steel, और consumer goods को हम light industry भी बोलते हैं. Consumer goods को हम light industry and capital industries को heavy industries भी बोलते हैं. डिफरेंस बिटवीन, अब मैंने आपको बताया दैट देर आर मेनली हमारे जो है इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग द इंडस्ट्रीज विच आर फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड मिनरल. तो एक अच्छी इंडस्ट्री, एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ होना चाहिए? वेयर शुड इट बी देयर? तो if we talk about good industrial location, ideal industrial location, तो बच्चा हमें इंडस्ट्रीज हमेशा उस जगह पे रखना चाहिए जहां से हमारा रॉ मटेरियल, जो हमारा कच्चा माल है, दैट शुड बी इजीली एक्सेसिबल. क्योंकि आपको जो भी करना है रॉ मटेरियल को ही कन्वर्ट करना है. एंड इफ द रॉ मटेरियल्स टेक टाइम टू रीच योर डेस्टिनेशन, तो आपका जो सामान है वो भी लेट बनेगा और उससे आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. तो सबसे पहला होता है इट शुड बी लोकेटेड नियर. आइडियल आपका होता है जहां पर आपका रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिलता है. लाइक आयरन का जो इंडस्ट्रीज है, आपका जो छत्तीसगढ़ है या दुर्ग है, बस्तर है, इन्हीं एरियाज में आपके आयरन इंडस्ट्रीज भी बहुत है. एंड इफ यू रिमेंबर, हमने कोल के मार्क किए थे, कोल फील्ड, देन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. तो वेर एवर दीज रॉ मटेरियल्स आर देयर, वहां इन इंडस्ट्रीज को हम सेट करते हैं. सेकेंडली, नॉट ओनली रॉ मटेरियल्स, we also require cheap labor. जूट इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर इन इंडिया, जूट इंडस्ट्रीज आर ऑल लोकेटेड इन दी इन मैक्सिमम हमारे जो है वेस्ट बंगाल में है. मैक्सिमम. इनफैक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट. लेकिन बाद में बांग्लादेश हमारा जब अलग हो गया तो हमारे मैक्सिमम जो जूट इंडस्ट्री से वहां चलेगा. और अभी भी अगर आप वहां पर जाओगे ना, इवन टिल डेट, इवन आज भी अगर आप जाओगे ना,
तो जहां पर आपका कलकत्ता खत्म होकर वेस्ट बंगाल स्टार्ट होता है, वहां देयर इज अ वेरी बिग गेट बना हुआ है, वेलकम टू। और वो जो आपका बॉर्डर है, वो पूरा एरिया आपका जूट एरिया। तो जूट इंडस्ट्री आपके जो है वहां पर है, तो वहां सिर्फ जूट नहीं है, वहां पे आपके जो लेबर है वो भी आपका सस्ता है। देन पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, water, and apart from that you also require the market where you are selling out. Now many times आपके जो सिटीज होते हैं, आसपास के जो सिटीज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स नॉर्मली बैकवर्ड एरिया में डाला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट्स देती है। तो जब आप सेट करते हो तो आसपास की जो सिटीज होती हैं नॉर्मली दे आर द वन जो उनको बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंट्स, इनकी सर्विसेज देते हैं। और कई बार क्या होता है, वहां पर पूरा एक इंडस्ट्रियल लोकेशन बन जाता है, जिसको हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहते हैं। बेटा, दिस कम्स इन अ वन मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्लोमेरेशन इकोनॉमी? एग्लोमेरेशन का मतलब होता है जब इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है सिटीज के आसपास में, एंड दे स्टार्ट टेकिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द सिटीज। लाइक आपका ये दिस इंदौर, इंदौर के बाहर आपका देवसर है, तो वो जो एरिया है दैट इज एन इंडस्ट्रियल लोकेशन, एंड दे टेक द ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम इंदौर एंड उज्जैन। तो इस तरीके से इंडिया, दिल्ली के अंदर आपका ओखला, इट इज एन एग्लोमेरेशन इंडस्ट्री। ओखला जो है इट वाज सेटअप जहां पर आपके इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, अभी भी वही है आपकी इंडस्ट्रीज, एंड ऑल द फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब उनको दिल्ली और दिल्ली के आसपास से मिलने लग गए थे। तो दिस वे इट इज कॉल्ड एज, ऐसे सेंटर्स को हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज होती थी नॉर्मली देवर इन नियर द पोर्ट एरियाज, जहां आपका, जहां से शिप जाते थे, मुंबई, कोलकाता, सूरत, देन चेन्नई, ये एरियाज थे। बट नाउ there are industries within the city, within the main areas also, but most of the industries वहां सेट होती हैं जहां से इनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है। लाइक अगर आप देखोगे एप्पल जूस की फैक्ट्री आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी नियर द हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर एरियाज, तो उनको रॉ मटेरियल वहां सस्ता मिल जाता है। सो दे हैव टू कैलकुलेट। नेक्स्ट इज, ये तो हमने पढ़ा what is classification of industries. See, in our globalization, in our money and credit, we had studied that when people come together, जब लोग मिलकर voluntarily, जानबूझकर, they take membership and they form cooperative sectors and they help the members of the, उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? मेन हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, या तो एग्रीकल्चर से आते हैं या फिर हमारे जो है दे कम ईदर फ्रॉम द मिनरल बेस्ड और एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? एग्रीकल्चर आपका जो है इट इज एग्रीकल्चर, बट इसमें आपका जो है लेस कैपिटल लगता है एंड लेबर आपका ज्यादा होता है। फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे सारे एग्रो बेस्ड है। वेरस जो आपके मिनरल इंडस्ट्रीज हैं, इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, बिकॉज यू नीड द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट और यू हैव टू कन्वर्ट इट। लाइक एल्युमिनियम को बॉक्साइट से एल्युमिनियम के फॉर्म में लाने के लिए आपको एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल, ज्यादा पैसा लगता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमारे एग्रीकल्चर के अंदर है कॉटन, जूट, शुगर। मतलब ये आपके पेपर में है, इट इज नॉट दैट कि यही है, दीज आर द मेन इंडस्ट्रीज विच यू विल बी स्टडी। नाउ व्हाट यू विल स्टडी या व्हाट विल योर पेपर में आएगा? एग्रीकल्चर से आपको मिलता है
cotton. Cotton is converted into different kinds of clothes. Now the same cotton is used in polyester. पॉलिएस्टर का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स 5. तो जब 5 तरीके के जो धागे होते हैं, दैट व्हेन दे आर मेड दे कम अंडर पॉलिएस्टर. अगर हम कॉटन को इफ वी आर यूजिंग विथ सिल्क तो वो सिल्क कॉटन कहलाता है. सो कॉटन इंडस्ट्री जो है इट इज वन ऑफ द बेस इंडस्ट्री फॉर मेनी. एंड इंडिया का जो कॉटन है, जो हम अगर आपको याद हो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब में हमने पढ़ा था इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन एट वन टाइम. आज भी इंडिया का जो कॉटन है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपके आज के डेट पर तो बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं जो हायर लेवल पर आपका जो है कॉटन मतलब की टेक्सटाइल्स जो है दे आर कीपिंग. टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच इज बेसिकली फॉर द क्लोथ, 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो भी हमारा प्रोडक्शन इंडस्ट्री से आता है उसका 14% हमारा जो है टेक्सटाइल देता है. देन एग्रीकल्चर के बाद इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट and also contributing to the GDP, and it is self reliant. ये अपने आप में, because टेक्सटाइल के लिए आपको क्या क्या चाहिए? धागा, टाई, डाई, मतलब कि ये सारे चीजें जो है दे आर ऑल हैविंग अ लॉन्ग चेन. सबसे पहला हमारा है कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल्स. कॉटन वी हैव हैंडलूम. हैंडलूम मतलब जो हाथों से बनता है, जो लूम्स होते हैं जिसमें आपके धागे काटे जाते हैं, उसको हाथों से जब बनाते हैं तो वो आपका हैंडलूम होता है. एंड इन इंडिया वी आर हैविंग हैंड स्पिनिंग, हैंड लूम एंड पावर लूम्स. पावर लूम्स होते हैं जो आपके लूम्स ही होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट विद द हैंड्स वी यूज द इलेक्ट्रिसिटी. इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ड्यूरिंग द till first world war it was poor. मेकिंग ऑफ ग्लोबल एंड इंडस्ट्रियल इन द एज ऑफ इंडस्ट्री में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि व्हाट वाज द मिराकल कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे इंडस्ट्रीज ज्यादा हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश वाज एंगेज्ड इन वॉर तो उन्होंने इंडिया को परमिट कर दिया था. वी आर हैविंग द कॉटन, कॉटन सिंथेटिक कॉटन, उसका नाम क्या है? सिल्क, मेनी, and most of them are owned by private sectors. ये जो almost 80% of them are in private है, ये आपका आता है as a fill in the blanks, and the rest are either with government में, गवर्नमेंट के पास कुछ है, कुछ कोऑपरेटिव है जैसे NTC, नेशनल टेक्सटाइल कोऑपरेटिव. देन वी आर हैविंग द लूम्स. छोटे लूम्स भी हैं, बड़े लूम्स भी हैं. And the first textile which I have written in the very मतलब कि बीच में लिखा है, this is again a one marker question which was established in 1854 in Bombay. कॉटन टेक्सटाइल हमारे अगर आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो हमारा था ब्लैक कॉटन. हमने जो है रेगूर सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वी हैड मार्क. कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, ये एरियाज हैं जहां आपको कॉटन प्रोडक्शन ज्यादा है. दूसरा, गुजरात और महाराष्ट्र में आपका जो है पोर्ट फैसिलिटीज भी है, लेबर भी आपका सस्ता है, क्लाइमेट इज ऑल्सो फीजिबल. दैट इज वाई इट इज मोर लोकेटेड नियर दीज एरियाज. प्लस पहले कॉटन के बॉल को प्लग करना, फिर उसको निकाल कर उसको स्पिन कर कर उसको वीव करना, फिर डाई करना, डिजाइन करना, पैकेजिंग, टेलरिंग, स्यूइंग. सो यू कैन सी दैट हाउ मेनी, एक कॉटन से कितने सारे काम हो गए. एंड दिस इंडस्ट्री डेफिनेटली, अब कॉटन आपका रॉ है, अब आप पहन रहे हो ऑरेंज कलर, आप पहन रहे हो ब्लैक कलर, आप पहन रहे हो ब्लू कलर, तो द केमिकल्स, द डाई, द पैकेजिंग, इंजीनियरिंग वर्क्स. आपका स्विंग मशीन है तो इट्स कंप्लीटली एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट. सो इट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू दीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो.
बट हमारा जो स्पिनिंग है वो महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु है, बट वीविंग वी आर हैविंग ऑल ओवर द कंट्री. कपड़ों की बुनाई. इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन yarn to Japan. Cotton goods are also exported to US, UK, Russia, France, East European, Nepal, Singapore, Sri Lanka, and Africa. Indian cotton is one of the you can say famous cottons around the world. If you know, there are many brands in India which are actually manufacturing to these countries and they are on the topmost in the world. But ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन. These industries have lots of problems. Now, if you go to आज के डेट पे क्या बेटा, अगर आप पहले मार्केट जाते ना, पहले आप मार्केट जाते तो you will not be getting the anything whatever you are wearing or you want to wear, your mom is wearing, you will not be getting so easily. Everything was tailor made. आपको सब कुछ आज की डेट पर अगर आप जाते तो you go to the shop, you have different varieties, you get it. There is a difference between the olden industrial setup and new industrial. Still, आपके जो वीवर्स हैं, आपके जो स्पिनर्स हैं, ये लोग रूरल बेस्ड होते हैं. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, दे ऑल्सो गेट देयर वर्क डन बाय दीज पीपल. तो इन एरियाज में मशीनें आपकी पुरानी, नॉट एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. सप्लाई ऑफ पावर इज वेरी erratic. erratic मतलब आते जाते करते रहना. इतना हमारा लेबर, we don't have that much of skilled labors. Then of course not everyone is so found. Yes, in the past 2-3 years cotton manufacturing, cotton के जो products हैं, they have come into the market once again. But still अगर आप synthetic और cotton को देखोगे तो people buy more of synthetic. इन इंडिया वी हैव द सीजन्स. समर में हम लोग कॉटन की तरफ जाते हैं, विंटर में हम सिल्क की तरफ जाते हैं. बट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो वी लुक इन टू द वर्ल्ड लेवल. देन our spinning mills are globally competitive and can use all the fibers. बट जो हमारे वीविंग है, वीविंग जहां पर भी आपकी निटिंग है, जहां आपको कपड़ों को बुनना पड़ता है, अभी वहां पर जो है दे आर नॉट दैट मच केपेबल. लुधियाना वीविंग का आपका जो मेन एरिया है लुधियाना है. आप लुधियाना चले जाओ. if anyone has gone, लुधियाना is the industry for knitting as well as it is for the hosiery. आपके जो वेस्ट है, मतलब बनियान वगैरह, जो टॉवल्स, ये सब जो चीजें हैं, ये सब आपकी इधर इट विल बी इन तिरुचूर, यानी कि आपका केरला के पास, या फिर आपका जो है इट इज कंप्लीटली इन लुधियाना. तो जो यहाँ इंडस्ट्रीज में जो आपकी निटिंग मशीन्स हैं, दे आर नॉट स्टिल एट पार. तो ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है. द सेकेंड वन इन द एग्रो बेस्ड इज जूट इंडस्ट्री. जूट पहले हम बिल्कुल यूज नहीं करते थे. We were not having. In fact, as I told you, before independence, India was the largest exporter of jute industry. अगर आप जाओगे, जूट देखने में बिल्कुल दूर से गन्ने की जैसा लगता है, बट उसको निकालना पड़ता है, उसके रेशे निकालने पड़ते हैं. देन दे आर कन्वर्टेड इनटू द रोप्स, द गनी बैग्स. आपके पेपर का ही क्वेश्चन है कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो हम उसको गनी बैग्स में यूज करते हैं. देन घरों के अंदर सजाने के लिए यूज करते हैं, फॉर कैरी बैग यूज करते हैं. देन व्हाट हैपेंड इज, बहुत सारी कंट्रीज में प्लास्टिक्स को बैन कर दिया गया. सो व्हेन द प्लास्टिक वाज बैंड, at that time once again जूट इंडस्ट्री जो है इट केम अप. अभी आपका जो है कल से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है, एंड इफ एनीवन इज विजिटिंग दैट एरिया, तो प्लीज गो टू द जूट इंडस्ट्री एंड वेस्ट बंगाल, जहां पर आपको ये सारे जो मैं इंडस्ट्रीज पढ़ा रही हूँ ना, ये सब कुछ आपको वहां के पवेलियंस में मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ जूट हैज हेल्प्ड. मैंने जैसे आपको बताया, पहले हम नंबर 1 थे, बट नाउ राइट नाउ वी आर नंबर 2.
मोर ओवर हमारे यहाँ पर बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, थाईलैंड, ये भी अब कंपटीशन में आ चुके हैं। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है that why most of the jute industry is located near Hooghly Basin, यानी कि वेस्ट बंगाल। पहली बात, वहां पर आपका जो है जो क्लाइमेट एंड सॉइल है दैट सपोर्ट्स जूट। सेकेंडली, वाटर ट्रांसपोर्ट हुगली बेसिन के थ्रू दैट, मतलब कि जो जूट है दे आर एक्सपोर्टेड टू द नियर बाय कंट्रीज एज वेल एज टू द पोर्ट्स। देन आपका बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से वहां से चीप लेबर भी है। It's a very big industry. And why I personally know is my daughter is in one of the US company. So she 80% उसका एक पैर यहाँ रहता है, दूसरा पैर उसका जयपुर रहता है, तो तीसरा उसका कोलकाता रहता है। तो whenever she goes to कोलकाता, मेरा एक ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो जूट इंडस्ट्री ही जाती है, तो she would be sending the pics. She would say, because I will tell कि प्लीज मुझे पिक्चर भेज दो, I'll use it in my, मैं अपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करूंगी, तो she will be sending. तो she sends me how the jute industry, मतलब कि उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, how they use it. It's a very cheap industry. But in between, when plastics आपके ज्यादा हो गए थे, at that time jute industry हमारा जो है it was perishing. But now national jute policy, one marker question, was formulated in 2005 to increase the productivity, improve the quality and ensure good prices for jute. इस वाले में आपके पेपर में क्वेश्चन आता है why jute industries are located near Hooghly Basin, then what are the, मतलब कि why was national jute policy formulated, as I have already told कि अब हम गवर्नमेंट जो है वो कहता है कि आपको जूट, उसका नाम क्या, गनी बैग्स यूज करने हैं, तो नाउडेज वी आर हैविंग ऑल द वन विच आर मेड ऑफ जूट ओनली, दैट इज वन. Next is last, that is for today, because these three will be agro based. पहले हमने पढ़ा कॉटन, सेकेंड हमने पढ़ा जूट, द थर्ड वन इज शुगर इंडस्ट्री. शुगर केन से निकलता है. And if any one of you is residing or their parental or grandparents houses near the, उत्तर प्रदेश के अंदर मीरठ, मुजफ्फरनगर में है, तो they can find the sugar cane fields on both the sides. एंड वहीं पर आपको शुगर इंडस्ट्रीज में मिल जाएंगी, जैसे आपका मवाना शुगर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, मोदी शुगर मिल है. तो यू विल बी फाइंडिंग मेनी, एंड ऑन द वे you will find the people sitting on a bogie selling the good. तो शुगर हमारा जो है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. शुगर केन आपका, एंड ब्राजील के बाद वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. बट गुड़ एंड जो आपका भूरा होता है खंड सारी, उसमें हम नंबर 1 है. पेपर का क्वेश्चन है. Right now we are having 460 sugar mills, UP, Bihar, then महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन जगहों पर भी है. For the past few years, one of the very repeated question from this concept वो है why there has been a shift in the sugar industries towards south, especially in Maharashtra. मतलब लोग यहां छोड़कर वहां क्यों जा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वहां जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसमें जो मिठास होती है, सुक्रोज होता है, दैट इज मोर. देन देयर इज कूलर क्लाइमेट, तो क्रश करके उसका जूस निकाला जाता. शुगर कैसे बनाते हैं हम लोग, गुड़ कैसे बनाते हैं, अ सिंपल. आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम अ मूवी, अमिताभ बच्चन जी की एक बहुत फेमस मूवी थी सौदागर, उसमें था गुड़ के पहले जूस को निकाला जाता है, भट्टी रखी जाती है, देन उसके अंदर वो, मतलब कि दे हैव द स्पेसिफिक, उसको डाला जाता है, एंड देन उसको मिला मिला के फॉर द एंटायर डे, देन इट बिकम्स गुड़.
बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज उसको वो क्रिस्टल में चेंज करते हैं एंड देन द शुगर क्यूब्स और शुगर क्रिस्टल्स आर फॉर्म. तो वी नीड टू क्रश इट. मोर ओवर आपके ये जो एरियाज है दैट इज आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर्स बहुत ज्यादा है which is less in UP, and that is why in the recent time there has been a shift of sugar industries towards western states. Dusra, there are certain problems also for the sugar industry. One is ये आपका जो शुगर केन है वो पेरिनियल है, अभी आएगा दिसंबर जनवरी में. देन देर इज अ ट्रांसपोर्ट डिले, एंड देन क्या होता है बच्चे, जब हम ये क्रश करते हैं गन्ने को, तो आपने देखा होगा कि गन्ने का जो स्टॉक होता है जो क्रश करने के बाद उसको भी यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस बायो गैस फ्यूल. उससे आपका फ्यूल निकलता है, उसको जलाकर उसका फ्यूल निकाला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैगेज. दैट इज कॉल्ड एज बैगेज. आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज बैगेज? बैगेज का मतलब होता है द फाइब्रस मैटर शुगर केन को क्रश करने के बाद रह जाता है, दैट इज यूज्ड एज अ बायो फ्यूल इन द मैन्युफैक्चरिंग. तो उसका जो यूज है हमारे यहाँ अभी इतना नहीं है. सो इफ वी आर स्टार्टिंग, इफ यू गो टू द शुगर इंडस्ट्रीज, अगर आप कभी भी शुगर, आपको ना एक बड़ी अजीब से जलने की सी स्मेल आएगी. सो दे यूज दिस and it has to be taken through many procedures. Sugar mills इतने बड़े नहीं होते हैं, yet they go through many procedures. तो that is आपका sugar industry. ये जो 3 industries which we have studied today, cotton, jute, and the third one is आपका sugar industry. These 3 industries are they are the key industries in the manufacturing sectors. कैसे? हम अगर अपने जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन इन्हीं इंडस्ट्रीज से आपका, अब शुगर आएगा तो आपके हलवाई की भी दुकान है, शुगर है तो बॉर्नविटा में भी आपके डलता है, शुगर आएगा तो आपके चॉकलेट्स भी आते हैं, यानी कि शुगर इज बेस फॉर मेनी अदर इंडस्ट्रीज. कॉटन, आपका कॉटन जो है दैट्स अ रॉ यान है, उस यान को हम कॉटन क्लोथ के अंदर भी यूज करते हैं, उसी कॉटन को हम लोग दूसरे क्लोथ्स बनाने में भी यूज करते हैं, और टेक्सटाइल्स तो आपका एवर एवर है, इसीलिए वो भी ऐसा ही है. जूट हमने पढ़ा, जूट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, हमारे इंडिया के लिए इट इज वन ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. इट इज वन ऑफ द एक्सपोर्ट यूनिट. हमारे, अगर हम कॉटन को एक्सपोर्ट बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से हमारा जो जूट है वो भी एक्सपोर्ट होता है. एंड इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट because of these. But for the past few years, because of the National Jute Policy 2005, because of ban on the plastic products, जूट का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जूट के जो आउटपुट है वो ज्यादा है. Secondly, the government is also giving more importance to jute production by providing subsidy, by providing proper environment to these people. बट मैक्सिमम जूट इंडस्ट्रीज आपके वेस्ट बंगाल के आसपास में ही है. इफ यू आर फ्रॉम दैट एरिया और इफ यू गो देयर एट सम टाइम, डू विजिट, you will like all these things. So this is the first session of the chapter classification of manufacturing industry.